So dear students, in this video I will discuss about volume of right circular cone. You already know what is a right circular cone. So this type of cone, volume of this we have to study. Suppose A, B, C, and this is the center O. OC is the radius of base of cone. AO is represented by R. AO is height of cone, represented by H, and this AC is representing the slant height. AC is slant height of cone L. So these are notations, and to here formula for volume of cone is volume of cone is given by 1/3 pi r square h. This formula will be used. R is radius of base of cone, h is height of cone, L will also be sometimes used in the question, which is the slant height of the cone. And a small activity we can do to see how this formula is coming. For that you have to take a cone and cylinder of same height and same radius of base. So there is a cone, this is the cone, here also radius of base is R, here also radius of base is R, height is H, same height is here also. So this type, if two containers are taken, one in the shape of cylinder, other in the shape of cone, both are hollow, and suppose we take some liquid or some sand may also be taken, then fill this cone with the sand and pour this in this one, like this. In the cylinder you will pour the sand, and then it will be observed that this cylinder will be completely filled when we pour 3 times the complete filled volume of cone. That will give you, that is, volume of cylinder will be equal to volume of cylinder will be equal to 3 times volume of cone of same height, and you already know in the previous exercise volume of cylinder is pi r square h is equal to 3 into volume of cone, and then you can get this formula, volume of cone is equal to 1/3 pi r square h. इस तरह से एक छोटी सी एक्टिविटी से आप ये देख सकते हैं. मेनली एक कोन है आपके पास जिसका रेडियस ऑफ बेस R है, हाइट AO H है और स्लाइंट हाइट है AC L. फॉर्मूला इसका कोन का 1/3 पाई r स्क्वायर h है. अब इसको एक छोटी सी एक्टिविटी से आप देख सकते हैं कि क्यों ये फॉर्मूला आपको मिलेगा. आपको उसके लिए क्या करना है, आपको एक सिलेंडर लेना है और एक कोन लेना है. दोनों का रेडियस ऑफ बेस सेम है R और दोनों का हाइट भी सेम है स्मॉल h. तो क्या करना है कि आपको कोन को, मतलब 2 कंटेनर लेने हैं आपको. एक कंटेनर आपका सिलेंडर के शेप में है, ये हॉलो सिलेंडर है, बेस तो होगा ही कुछ इसका, और दूसरा आपका कोन है. तो कोन में कोई आप लिक्विड ले सकते हैं या फिर सैंड ले लीजिए, ऐसे कोई एक्टिविटी लेने के लिए, और कोन को पूरा आप सैंड से भर दिया. इसके बाद इसमें सैंड को खाली करेंगे सिलेंडर में, हॉलो सिलेंडर में. तो आप देखेंगे करीब 1/3 भरेगा पहली बार में. फिर जब दोबारा आप साइड कोन को भर के फिर से खाली करेंगे तो लगभग 2/3 भर जाएगा, और जब ये 3 बार में पूरा ये सिलेंडर भर जाएगा. तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ कोन का 3 टाइम्स होता है, क्योंकि कोन का को 3 बार पूरा भर के जब खाली किया गया तो इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर हो गया. इसलिए आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ कोन का 3 टाइम्स है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप इसके पहले एक्सरसाइजेस में पढ़ चुके हैं.
कि वो पाई आर स्क्वायर एच होता है इज इक्वल टू 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, और इस तरह से आप डिवाइड करेंगे तो आपका फॉर्मूला मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कुछ क्वेश्चंस में एल की भी जरूरत पड़ेगी आपको, एल का जो रिलेशन होता है वो भी याद रखना होगा आपको। एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये रिलेशन भी आपको जहाँ पे एल दिया होगा क्वेश्चंस में वहाँ यूज करेंगे आप, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम होता है आपका। तो ये आर है आपका, ये एच है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये रिलेशंस मेनली आपको वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। तो अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.6 के लिए। So let us see question number 1, 13.7. Question is like this: find the volume of right circular cone. Find the volume of right circular cone with, we are given radius 6 centimeter, and height 7 centimeter. So here you have to find the volume. So use the formula V is equal to 1/3 pi r square h. So r is given 6 centimeter, h is given 7 centimeter, pi you already know is 22/7. So substitute these values. So 1/3, 22/7, r square means 6 into 6, and h is 7. So now cancel this 7, 3 2 just 6, you get 44, 22 into 2 is 44 into 6. So 6 4 are 24, 2 carat 6 4 are 24, 26, 264 centimeter cube. This is the required volume. तो मेनली इस क्वेश्चन में आपको रेडियस दिया था, हाइट दिया हुआ है, और फॉर्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम के लिए आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, 6 into 6 into 7, 7 आपका कैंसिल हो जा रहा है, फिर आपका 3 से 3 2 10 6 हो गया, बचा है 22 into 2 44 into 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 264 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ गया इसका। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का। द सेकेंड पार्ट रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, height is 12 centimeter, so r is 3.5 centimeter, h is 12 centimeter. So apply the formula V is equal to 1/3 pi r square h, is 1/3 pi is 22/7, r square 3.5 into 3.5 into h 12. So now simplify this. 3.5 2 times is 7, and 2 will cancel is 22 11 times, and then 3 will cancel 12 4 times. So now we'll have this 11, 3.5 and 4. So 11 into 3.5 into 4. These numbers are remaining. So 3.5 into 4 you can multiply. This will become 35 into 4 is 140, so it will be 14, and now you can multiply this by 11, 14, 14, 154 centimeter cube. This is the volume of this question. इस तरह से इसमें आपको दूसरा सिलेंडर है, इसमें रेडियस 3.5 दिया है, हाइट आपको 12 दिया है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना 1/3 22/7, 3.5 into 3.5 into 12। अब इसके बाद कैंसिलेशन करना है आपको, 3.5 का डबल 7 होता है, तो यह 2 आ गया, 2 से फिर ये 22 कैंसिल हो गया, 11 आ गया, और 3 से 12 कैंसिल हो गया, 4 आ गया यहाँ पर। अब आप देखेंगे तो 11, 3.5 और 4 को मल्टीप्लाई करना, 35 into 4 आपका
140 होता है, यहाँ डेसिमल है इसलिए 14 हो गया, और 14 इंटू 11 आप कर लेंगे इजिली, तो 154 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स, फाइंड द कैपेसिटी in liters of a conical vessel with, here we are given first part, radius 7 centimeter and slant height, radius 7 centimeter, slant height 25 centimeter. So you have to find the capacity in liters. Capacity means volume. Volume का formula है आपका 1/3 pi r square h. So h is not given here. So first we will find h. You know that L square equal to r square plus h square. Solve this for h. Or h square is equal to L square minus r square. So substitute values 25 square minus 7 square, 25 square minus 7 square, you can apply a square minus b square, 25 plus 7, 25 minus 7, that is 32 into 18, 18 to the 36 and 18 3 is 54 and 3 57. So L square is, h square is 576, so h will be square root of 576, that is 24 सेंटीमीटर। तो ये आपका h निकला है। अब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और वॉल्यूम फाइंड करेंगे 1/3 22/7 r स्क्वायर 7 इंटू 7, और ये आपका h यहाँ से निकला आपको 24, ये 24 होगा, एक 7 आपका कैंसिल होगा, then 3 will cancel 24 8 times, so what you are left with 22 7 and 8. So 22 7 and 8 will be 22 into 7 and 8 is 56, and you can multiply this 56 2 times 112, 2 1 1, you will get 2 3 2 1 1 2 3 2 1232 सेंटीमीटर क्यूब। बट हियर वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। लीटर्स में कैपेसिटी फाइंड करना है, आपको ये याद रखना होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये कन्वर्जन आपको याद रखना है। तो कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब इंटू लीटर डिवाइड बाई 1000, सो 1232 अपॉन 1000 लीटर। इस तरह से आपको ये आ जाएगा आपका 1232 लीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन में पहले आपको आर और एल दिया हुआ था, तो ये रिलेशन यूज करेंगे एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल और आर की वैल्यू रखा 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर लीजिए इसको आप। ए प्लस बी माइनस बी 32 इंटू 18 ये 576 आ गया, और एच की वैल्यू 576 का स्क्वायर रूट निकाल लेना। अब आपको यहाँ पे वैल्यू रख देना वॉल्यूम के लिए, कैपेसिटी के लिए 1/3 22/7 7 इंटू 7 इंटू 24, 7 कैंसिल होगा, 3 से 24 8 टाइम्स हो गया, 22 इंटू 56, ये आपका 1232 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये कन्वर्जन यूज करना है आपको, तो ये आपका 1232 लीटर आ जाएगा। देखते हैं सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ h is 12. In the second part we are given h is equal to 12 centimeter and L is 13 centimeter. These are values. Again use the same relation, L square equal to R square plus H square, or volume will be at R also.
So r square is equal to L square minus h square. So 13 square minus 12 square, 13 square minus 12 square, a square minus b square, a plus b a minus b, 13 minus 12, 13 plus 12, this is 1 into 25. So L square is equal to 25. L square is 25, L is square root of 25, that is 5 centimeter. What is R? Sorry, this is R square, so R is 5 centimeter. So now we can find the volume. V is equal to 1 by 3 pi R square H. So 1 by 3, 22 by 7 R square. R square means 5 into 5 into H. H is 12. And now you can simplify this. This will come in centimeter cube. To convert this into liter, you will divide by 1000 as done in the previous part. 3 4s are 12. So 22, 25 into 4 upon 7 divided by 1000. Now it is in liter. And now you can see 25, 4s are 100, so 40 times, and 4 this cancel 10 times. So now you are left with 22 in the numerator, 7 into this, you can cancel by 2, 2 5 are 10, 2 7 2 11, that is, so it is coming 11 upon 35 liter. This is the वॉल्यूम. इस तरह से इस क्वेश्चन में आपको H दिया हुआ था 12 और L दिया हुआ था. वॉल्यूम के लिए आपको R भी चाहिए. R आपको नहीं दिया है तो R निकालेंगे. पहले आप ये रिलेशन यूज करेंगे, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. तो R स्क्वायर की वैल्यू आ गई L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू देंगे 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 माइनस 12, 13 प्लस 12. इस तरह से ये 1 इंटू 25 L R की वैल्यू मिल गई आपको. स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 सेंटीमीटर. इसके बाद आपको वैल्यू रख देना है इसमें 1 by 3, 22 by 7, 5 into 5 into 12, 3 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स. ये सेंटीमीटर क्यूब में है. लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड कर दिया. बचा गया 22, 25 और 4 था यहाँ पे 7 into 1000. 25 से ये 1000 कैंसिल हुआ, 40 आया. फिर 4 से 40 कैंसिल हुआ, 1 by 10 आया. और फिर इसको 10 और 22 को 11 by 5, तो आपका आ गया 11 by 35 लीटर. इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ. So that's all in this video.